In the last video on basic maths, we have covered differentiation, and in today's video we will cover integration, maybe in two parts. So today we'll cover the first part and later on we'll cover the second part. Let's see. Okay, integration normally is given with this symbol. So this is the symbol for integration and this is your some function fx. अब व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, उसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. सपोज हमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स और वो कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है उसका. सपोज दिस इज़ योर वाई एक्सिस एंड दिस इज़ योर एक्स एक्सिस and this graph is something like this. So this is your fx. So this point is P and this point is Q, and we want and say this is A and this is B, and we want the area bounded by PA BQ P. So we want to find the area. So let us divide this area into vertical strips, vertical rectangular strips of equal width. ठीक है, तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं something like this. So this is one strip, this is another strip. Okay, इस तरह से हमने इस एरिया को डिवाइड कर दिया. All the strips are of same width. तो अगर ये डेल्टा एक्स है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी डेल्टा एक्स होगा, ये भी डेल्टा एक्स होगा, ये भी डेल्टा एक्स होगा. Something like this. So let us say this A point is your x equals to small a, and this point is x equals to small b, and we have divided this area in forms of rectangular strips, जिसमें ये छोटी छोटी रीजन्स इंक्लूड नहीं हो रही हैं, केवल हमारे ये रेक्टेंगल्स इंक्लूडेड हैं. Okay, so these areas are not included. So let us say this is your x1 and this is your x2 and this is x3 and so on and so forth. So how many rectangles are there? If we have divided it into n rectangles, so this point will be your x equals to n. Okay, because there are n rectangles. So this is the first, second, third, and this is the nth rectangle. ठीक है, we have divided into so many rectangles. और इसमें अगर हम ध्यान से देखें, these areas are not included. If we add up all these area, these triangular sort of triangular regions are not included. Okay, so let us say the area of all these rectangles is capital A, all these rectangles, and since we have n strips, मैं यहाँ लिख देता हूँ, there are n rectangular strips. Each of width delta x. So if this is A, it will be A plus delta x, it will be A plus 2 delta x, A plus 3 delta x, so on and so forth. And if this is your A, so this point will be your f of x1.
मैंने इसको x1 बोला है, एंड दिस पॉइंट इट विल बी योर f of x2, f of x3, f of x4, f of x5, and so on and so forth. So this height is your f of x1. So the value of the function at x equals to x1. So this is the height and this is your base. So the area of this rectangle will be delta x into f x1. So let A be the area of all n rectangles तो इसको मैं लिख सकता हूँ, पहला रेक्टेंगल क्या होगा आपका, इट विल बी डेल्टा एक्स इंटू एफ ऑफ x1, ओके, एंड देन सेकेंड रेक्टेंगल विल बी डेल्टा एक्स इंटू एफ ऑफ x2, and the last rectangle will be f of xn into delta x, ओके। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको वी कैन राइट समीशन ऑफ f of xi where I is varying from 1 to n and here we have delta x, ओके बच्चों। समीशन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 1, आई को पहले 1 पुट करना है, कुछ आएगा, फिर आई को आपने 2 पुट करना है, फिर उसको ऐड कर देना है, फिर आई को 3 पुट करना है, फिर 4 पुट करना है, ऐसे कब तक वैल्यू पुट करते रहने हैं जब तक आप n नहीं आ जाता है। और उन सभी फिर जो भी आपके रिजल्ट्स आए थे वैल्यूज़ पुट करने के बाद उन सबको हमने ऐड कर दिया, तो अल्टीमेटली आपको यही चीज़ मिलेगी। अगर मैं ये वैल्यूज़ पुट करूँगा उनको ऐड करूँगा तो इतना सारा लिखने से अच्छा है कि हम इसको इस फॉर्म में लिख दें, तो इससे हमारा जो काम है थोड़ा आसान हो जाता है। तो दिस इज़ द रिज़ल्ट। बट बच्चों इसका जो एरिया आया है उसमें ये जो शेडेड ये जो मैंने सॉलिड एरियाज़ लिए हैं, दीज एरियाज़ आर नॉट इंक्लूडेड। अब हम क्या करेंगे, सो एट नाउ देर आर 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स आर टचिंग द कर्व। अब व्हाट विल डू, अब हम जो हमारा जो थिकनेस है इसकी विड्थ की, मान लेते हैं कि इसकी जो थिकनेस है वो डेल्टा एक्स है, और ये बच्चे डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा, अब ध्यान से देखो ये b है एंड दिस पॉइंट इज a, सो द एंटायर लेंथ विल बी b माइनस a, और हमने उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, n पार्ट्स में। सो डेल्टा एक्स विल बी b माइनस a अपॉन n, सो दिस इज योर डेल्टा एक्स। अब हमने क्या किया, नाउ वी आर इंक्रीजिंग n, तो क्या होगा, तो ऐसे अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो विड्थ डिक्रीज करेगी। सो नाउ लेट अस इंक्रीज n, इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी, इससे आपके जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं इंक्रीज हो जाएंगे। ओके जब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज होंगे, सो ये जो मैंने सॉलिड एरिया जो बनाया है ट्रायंगुलर फॉर्म में, दिस सॉलिड एरिया विल डिक्रीज, ये जो ट्रायंगुलर फॉर्म में है, ये जो ट्रायंगुलर एरिया है वो डिक्रीज करेगा। अगर मेरे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जब बढ़ जाएंगी तो आपका ये एरिया डिक्रीज हो जाएगा। एंड देन इफ आई से इफ n टेंड्स टू infinity, in that case the area of all these rectangles will be nearly equals to the area of this region, entire region. So in that case your A will be area of region P A B Q P, तो इसके बराबर हो जाएगा। सो मैथमेटिकली इसको दिखाने के लिए
अगर आपका a जो है दैट इज समीशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n f ऑफ एक्स आई डेल्टा x है, और मैं यहाँ पर लिमिट लगा रहा हूँ, लिमिट योर डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0। तो जब आपका n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेल्टा x विल टेंड टू 0। जो विड्थ है वो टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, तो वी विल हैव इनफाइनाइट स्ट्रिप्स या इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स। And when we'll apply this limit, then this thing can be written as mathematically as f of x dx. Okay, and this thing is called integration. So in this case, this operator, this integration of fx will give you the area under this curve. Okay. अब इसका एक एग्जांपल करते हैं कि हाउ वी कैन अप्लाई दिस थिंग। पहले इसी तरीके से करेंगे। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज इफ आई टेक अ सिंपल फंक्शन y is equals to x, okay, and we want to find the area between x raised to power x equals to 0 to x equals to 5। अब आप ध्यान से देखो कि ये फंक्शन है y equals to x, अगर यहाँ पर 5 है तो ये पॉइंट क्या होगा, it will be 5,5। if this is 5,5, so this height will be 5 and this length will be 5, so the area of this region will be half into base, that is 5, height is 5, so it comes out to be 12.5। now we want to find this answer with the help of this technique। okay, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने इसको स्ट्रिप्स में तोड़ देंगे, something like this। okay, और यहाँ पर जो आपका डेल्टा x होगा that will be b minus a, that is 5 minus 0 divided by n। so 5 by n is your delta x, and we want to find the area, and that will be your summation of fxi delta x, where I varying from 1 to n। so we can write this thing as if xi, when I is 1, you can say 0 hoga, so in that case you will get 0। when I is equals to 2, okay, so say this will be your 0 0, this is delta x, this is 2 delta x, this is 3 delta x। उसको मैं लिख देता हूँ, this point will be delta x, this point will be 2 delta x, and this point will be 3 delta x, so and so forth। तो पहले वाले का जो हाइट है that will be 0, अगले वाले का क्या हो जाएगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा x। okay, this x is delta x, so the height will be delta x। in the other case it will be 2 delta x into delta x। और ये कब तक चलेगा, your n minus 1 delta x to delta x। ओके, अब यहाँ पर आपका जो डेल्टा x का स्क्वायर है वो कॉमन आ जाएगा, सो इट विल बी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1। ओके, और यहाँ पर हमें लिमिट भी लगानी है, योर डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0, एंड दिस डेल्टा x इज बेसिकली, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, लिमिट योर डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0 डेल्टा x स्क्वायर, एंड यहाँ पर आपको मिलेगा योर
this is an arithmetic progression, there are n minus 1 terms, so it will be n minus 1 into n divided by 2, and delta x is 5 by n, so we can write it 25 by n square n minus 1 into n by 2. So limit delta x is tending to 0. तो अब ये जो हमारी एक्सप्रेशन है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ n. अब डेल्टा x जब 0 को टेंड करेगा तो n आपका इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ. लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इसको लिख सकते हैं 2 से कैंसिल हो गया 12.5, एंड इस एक n को इससे डिवाइड करते हैं, दूसरे n को इससे डिवाइड कर देते हैं, तो आपको मिलेगा 1 n by n minus 1 by n. Now this thing is 1, so what will have limit n tending to infinity 12.5 1 minus 1 by n. So if we put this limit here, so 1 by n tending to infinity, so this term will become 0 and we will get 12.5 as our answer. तो the same answer we will get जो हमको यहाँ मिला था वही आंसर हमको यहाँ पर मिला है with the help of the same technique that we have applied in the activity. Okay. Okay, let us see how we can simplify this integration, how we can solve it without doing that cumbersome activity. So suppose if you have some function fx dx, okay, and you want to find what is the integration of this. So first of all you try to figure out some function, say that function is capital Fx, that is different function than small fx, okay, and if you find such function such that the derivative of this gives you your function, okay. So if you find out this function, then in that case the integration will be this function times plus c. अब ये प्लस सी क्या अभी बताता हूँ, ये आपका इस तरह की इंटीग्रेशन को बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. इनडेफिनिट का मतलब कहाँ से कहाँ तक हमें इंटीग्रेशन करना है, हमें यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी होती है. और लिमिट का मतलब क्या होता है कि सपोज अगर आपको एरिया निकालना है, ये कोई फंक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एरिया निकालना है, तो दीज आर कॉल्ड लिमिट्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट. तो कहाँ से कहाँ तक आपको एरिया निकालना है. इस केस में आपको कुछ मेंशन नहीं दिया हुआ, कई बार आपको यहाँ पर वैल्यू दी होती है, सपोज यहाँ ए है ये बी है, तो यहाँ ए टू बी हम लिख सकते हैं. अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट. सो दिस इज योर इनडेफिनिट इंटीग्रल. सो जब भी आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है तो सबसे पहले तो आपको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन गिव्स यू दिस फंक्शन. तो d by dx of fx will give you fx, ओके. तो ये हमको मिल गया, और साथ में हमें एक कांस्टेंट लगाना होता है, बिकॉज इस पूरे फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे या डिफरेंशिएशन लेंगे इट विल गिव्स यू fx, बिकॉज c इज़ अ कांस्टेंट. तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे c आपका 0 ही आएगा, ओके. अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं इसका मतलब क्या है. सपोज हमारा जो f ऑफ x है वो है आपका एक्स स्क्वायर dx. अब हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर आए. तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब जिसको हमने डिफरेंशिएट करना है उसकी पावर में 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 उतरेगा और वहाँ पर एक्स स्क्वायर बनेगा. तो वी कैन से यहाँ पर जो आपका एफ ऑफ एक्स आएगा दैट विल बी एक्स क्यूब, तो आएगा उसमें. अब जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो यहाँ पे 3 उतरेगा, तो एक 3 नीचे होना चाहिए ताकि वो उसको कैंसिल आउट कर दे और हमको एक्स स्क्वायर मिल जाए. सो in this case the capital Fx will be x cube by 3. So we can write x square integral of x square
इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब ये सी क्यों ऐड किया? बिकॉज हमने यहाँ पर कोई लिमिट डिसाइड नहीं करी है। ओके, सो दैट्स वाई जो हमारा जो इंटीग्रेशन होता है उसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, कि जब हम उसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन is also called anti derivative। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, और इसका जब इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। ओके, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, और एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी मिलेगा। अब हम देखते हैं, अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है, सपोज ए टू बी, ये हम इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। समथिंग लाइक दिस। तो हमने वो फंक्शन ढूंढ लिया है, दैट इज एफ ऑफ एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स गिव्स यू स्मॉल एफ एक्स, ये हमको पता है। तो दिस थिंग कम्स आउट टू बी कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए। और इसका मतलब क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ एट फंक्शन कैपिटल एफ एट बी, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैपिटल एफ एट ए। तो इन दोनों को हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल। इस केस में देखते हैं, इंटीग्रल एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 5। ये हमारा वही केस है जो हमने पहले डिस्कस किया था। ओके, जो हमने 12.5 जिसका आंसर निकाला है। अब आप देखो यहाँ पर x है, x रेज़्ड पावर 1, तो इसका मतलब जो कैपिटल एफ एक्स होगा वो कैसा दिखेगा? वहाँ पर एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो जब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर एक 2 का फैक्टर आ जाएगा, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर एक 2 होना चाहिए। तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है? ये। और बच्चों, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ, एफ ऑफ 5 विल बी 5 स्क्वायर बाई 2, दैट इज़ 12.5, एंड एफ ऑफ 0 विल बी 0 स्क्वायर बाई 2 विच इज़ 0। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कैपिटल एफ 5 माइनस कैपिटल एफ 0, सो इट विल बी 12.5। सो दिस इज़ द आंसर। ओके, सो दिस इज़ द शॉर्ट वे हम किस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसी तरह से हमने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स डिफाइन कर दिए हैं, और उनको हम मेमोराइज कर लेते हैं। तो बार बार हमको सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ इसका किसको हम डिफरेंशिएट करें और हमको ये मिले। तो ऑलरेडी हमें कुछ फार्मूलाज डिराइव कर लिए हैं, और उन फार्मूले को हम एज इट इज़ ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देख लेते हैं, यहाँ पर करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़्ड पावर एन डी एक्स। अगर ये आपको दिया हुआ है तो इसको आपने क्या करना है? एक्स रेज़्ड पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो जो पावर है उसको 1 से बढ़ा देना है, और उसको डिवाइड कर देना है उस पावर से, एंड साथ में एक सी अगर ये इनडेफिनेट है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन फिज़िक्स आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे, इनडेफिनेट बहुत कम चांसेस मिलेंगे आपको। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है सी से, ये सी वाला बहुत कम आने वाला है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ओके, it will be minus cos x plus c. Similarly, integration of cos x will be sin x plus c.
इंटीग्रेशन ऑफ secant square x dx will be 10x प्लस सी। आप क्लियरली देख सकते हो कि राइट हैंड साइड का जब मैं डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिलती रहेगी। माइनस कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन विल बी योर प्लस साइन एक्स, तो ये आ गया। साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन विल बी कॉस एक्स, और 10x की डिफ्रेंसिएशन विल बी सेकेंड स्क्वायर एक्स। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की, ओके, अगर ये लाना है तो आपको यहाँ पर माइनस कॉट एक्स करना पड़ेगा, बिकॉज कॉट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है दैट इज़ माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपको ये मिलेगा। ओके, and then integration of your secant x 10x dx is secant x plus c, because secant x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है secant x 10x आता है। Similarly cosecant x cot x dx will be minus cosecant x plus c, because cosecant x का डिफ्रेंसिएशन is minus cosecant x cot x, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपको यही चीज़ मिलेगी। एंड देन यू हैव 1/x dx, so it will be your natural log of x. And there are another two important integration, that is 1/x square plus a square dx, and this thing will be 1/a tan inverse x by a, and then you can have 1/square root of a square minus x square dx। यहाँ पर जो a की बात हो रही है, a is a constant, इन दोनों में a जो है constant है, and it will be your sin inverse x by a plus c। ओके, these are some of the important formulas। अब इसमें कुछ रूल्स देख लेते हैं। सपोज अगर आपका इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर फंक्शन में कोई आपका स्केलर क्वांटिटी आ रही है, तो उस स्केलर क्वांटिटी को आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक रूल देख लेते हैं। ओके, इफ c इज़ अ कांस्टेंट, इन दैट केस आप c को बाहर निकाल सकते हैं और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। रूल नंबर 2, अगर आपको यहाँ पर x की जगह पर सम लीनियर फंक्शन गिवन है कुछ इस तरह से, ओके, सपोज 2x गिवन है, तो आपका जो आंसर होगा उस केस में, सपोज अगर f ऑफ x का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको कैपिटल fx मिलता है, तो इस केस में आपको मिलेगा 1/c f ऑफ cx। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल्स टू कैपिटल Fx। तो अगर ये आपको दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वी नो दैट साइन ऑफ x dx इज इक्वल्स टू माइनस कोस x प्लस सी। सो अगर हमें निकालना है साइन ऑफ 2x dx, so it will be minus 1/2 cos 2x plus c। ओके, क्लियर? यहाँ से आप देख सकते हो। Let us see some more example. Say if we have given integration of cos 2x plus 3
dx। ओके, अगर मैं डायरेक्टली रूल नहीं लगाता हूँ तो आप क्या कर सकते हो, वी कैन यूज सब्सटीट्यूशन। तो आप इसको लिख सकते हो 2x + 3 इक्वल्स टू सम वेरिएबल, सपोज मैं u ले लेता हूँ। नाउ वी डिफरेंशिएट दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा आपको, d/dx ऑफ 2x + 3 du/dx। सो दिस थिंग विल बिकम 2, और यहाँ से आपका dx यहाँ पर चला गया और यहाँ पर आपका du आ गया। तो फ्रॉम हेयर dx विल बी du/2। सो नाउ यू कैन सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू हेयर एंड द वैल्यू ऑफ u हेयर। तो ये आपका हो जाएगा cos u du/2। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये तो सिंपल सा बन गया, 1/2 तो बाहर आ गया। cos u का इंटीग्रेशन होता है sin u plus c, and sin and u is 2x + 3, so it will be sin 2x + 3 upon 2 plus c। तो इस तरह से भी सब्सटीट्यूशन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, रूल नंबर 3 की बात करते हैं। चलो रूल नंबर 3, सपोज हमको दो फंक्शन गिवन है f(x) और g(x). f(x) दिया है और g(x) दिया हुआ है, और हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों जो इंटीग्रेशन होती है ये डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू f(x) dx प्लस g(x) dx। तो इसका यूज़ कहाँ पर आएगा, अगर आपका कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, से आपको दिया है 3x³ + 4x² + x इंटू dx, लिमिट फ्रॉम 0 to 1, इसको सॉल्व करना है। तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 3x² dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 4x² dx प्लस इंटीग्रल x dx फ्रॉम 0 to 1। ओके, एंड दिस थिंग कैन बी रिटन एज, ये 3 बाहर आ जाएगा, और x² का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज़ x³ / 3। एंड इस तरह से हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर लिमिट दिखा देते हैं। एक बार पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर, प्लस 4 बाहर आ गया, और x यहाँ पर क्यूब है बच्चों, अगर यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, एंड इट विल बी x³ / 3 0 to 1, और यहाँ पर 1 है तो x² / 2, लिमिट 0 to 1। तो एक बार पहले अपर लिमिट पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 0/4 प्लस 4, 1/3 माइनस 0/3 प्लस 1/2 माइनस 0। So from here we have 3/4, and from here we have 4/3, and from here we have 1/2. So the LCM will be your 12. So 4 3s are 12, so it will be 9, and 3 4s are 12, so it will be 16, and 2 6s are 12, so यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। So it comes out to be 25 31/12. So this is the answer of this particular question. Okay students, or in the next video on integration we will do the application of integration, like how we can derive the formula of the area of a circle, how we can derive the formula of volume of the frustum. So all these application we will see in the next video. So, and if you have any doubt regarding this particular video, you can ask in the comment section. Thank you.